سمیرہ موسیٰ۔ دوستو، جتنے بھی لوگ سائنس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے شاید کبھی اس انسان کے بارے میں کچھ سنا ہو، لیکن باقی تو جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 99% نہ تو اس انسان کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس نام کے بارے میں سنا ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی یا پھر شرمندہ کر دینے والی بات تو یہی ہے کہ آخر لوگ اس انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ انسان، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لیڈی کوئی عام لیڈی نہیں تھی، بلکہ یہ تو مصر کی وہ بڑی مسلم ویگیانک تھیں کہ جن کو مدر آف ایٹومک انرجی کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں دوستو، وہی ایٹومک فیلڈ کہ جس میں آج کے دور میں کوئی بھی دیش کامیاب ہونے کے لیے یا پھر اپنے دشمن کو کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی جنگیں بھی چھڑ جاتی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لیڈی سائنٹسٹ صرف اور صرف 35 سال ہی زندہ رہ سکی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر یہ کچھ سال اور جی جاتی تو ہو نہ ہو مصر جیسے دیش کو اس دور میں ہی ایک ایٹومک پاور بنا دیتی، یعنی ایک ایسا دیش کہ جس کے پاس پرمانو ہتھیار ہوتا۔ یاد رہے کہ میں یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب امریکہ کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے دیش کے پاس یہ پاور ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ کینسر جیسی خطرناک بیماری کہ جس کے علاج کو آج کے دور میں حد سے زیادہ مہنگا یا پھر لگ بھگ ناممکن سمجھا جاتا ہے، اس کو لے کر بھی یہ ایک بڑے منصوبے پر کام کر رہی تھیں، اور بہت جلد ہی ان کو اس چیز کو لے کر ایک ایسی بڑی کامیابی ملنے والی تھی کہ جو نہ تو اتہاس میں پہلے کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ ہی اس کے بعد میں مل سکی ہے۔ انہوں نے یہ نعرہ بھی دے رکھا تھا کہ میں کینسر جیسی بیماری کے علاج کو بھی اتنا زیادہ افورڈیبل یعنی سستا بنا دوں گی کہ جیسے بخار یا پھر سر میں درد وغیرہ کا ہوتا ہے کہ جس کو عام طور پر ہم لوگ ایک گولی کی مدد سے ہی صحیح کر لیتے ہیں۔ مگر دوستو، شاید ان کی یہ حد سے زیادہ قابلیت، ان کے یہ بڑے منصوبے، بڑے اچیومنٹ ہی ان کے اوپر بھاری پڑ گئے، کیونکہ پہلے تو ان کو امریکہ میں رہنے کے لیے امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے سٹیزن شپ آفر کی گئی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد ہی ان کے ساتھ وہ ہوا کہ جو آج تک دنیا والوں کے لیے ایک پہلی بنا ہوا ہے، اور جس کا جواب آج بھی لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈ سمیرہ موسیٰ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے 3 مارچ سن 1917 سے، کہ جب مصر کے غربیہ نام کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد اپنے لوکل علاقے میں ایک سیاسی انسان کے طور پر جانے جاتے تھے، جبکہ ان کی جو ماں تھیں وہ ان کو بہت کم عمر میں ہی کینسر جیسی خطرناک بیماری کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ سمیرہ ابھی کم عمر ہی تھیں کہ ان کے فادر ان کو لے کر مصر کی راجدھانی قاہرہ میں شفٹ ہو گئے۔ ایک ہوٹل میں انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر اپنے روزگار کا بھی انتظام کر لیا۔ سمیرہ موسیٰ نے اپنی شروعاتی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن میں بھی اچھے گریڈز حاصل کیے تھے، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کے طور پر تیار کر لیا تھا۔ مگر پھر بعد میں انہوں نے آگے کی پڑھائی کے لیے قاہرہ یونیورسٹی میں سائنس کے فیلڈ کو چنا۔ آگے چل کر سن 1939 میں ریڈیولوجی میں سمیرہ موسیٰ نے اپنی BSc یعنی کہ گریجویشن کمپلیٹ کی، وہ بھی ٹاپ مارکس کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ان کے ٹیچر تھے یعنی استاد علی مصطفیٰ، ان کی قابلیت کو دیکھ کر ان کی یہ خواہش تھی کہ سمیرہ موسیٰ بھی اسی فیکلٹی میں ایک ٹیچر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اپنی ٹیچر کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اسی فیکلٹی میں ہی پڑھانا شروع کیا کہ جس میں کچھ وقت پہلے تک وہ خود پڑھتی تھیں، اور اس طرح سے وہ اتہاس کی پہلی ایسی عورت بھی بنی کہ جنہوں نے اس قاہرہ یونیورسٹی میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ سنبھالی تھی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے پھر ایٹومک انرجی میں اپنی PhD بھی کمپلیٹ کی، اور اس طرح سے وہ اس فیلڈ میں PhD کرنے والی دنیا کی پہلی عورت بنی۔ مصر کی ان مشہور نیوکلیئر سائنٹسٹ یعنی کہ سمیرہ موسیٰ کا پوری زندگی یہ ماننا تھا کہ ایٹومک پاور کا استعمال شانتی اور صحیح چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ اسی چیز کو پروموٹ کیا کرتی تھیں اور اسی چیز کا سندیش دنیا بھر میں پھیلایا کرتی تھیں، یعنی ایٹومک پاور کا استعمال غلط چیزوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہتھیار وغیرہ کے لیے، لیکن یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کا دوسری چیزوں کے لیے ضرور استعمال ہونا چاہیے۔
उन्होंने इसीलिए ही ये नारा दिया था कि वो न्यूक्लियर के जरिए से कैंसर के इलाज को इतना ज्यादा अफोर्डेबल और आसान बना देंगी कि जैसे एस्प्रिन की गोली, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में ये टैबलेट बहुत ही कम दामों पर और कहीं पर भी आसानी के साथ मिल जाती है। उनका ये जो स्लोगन था, ये जो नारा था, वो उस दौर में पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुआ था और इसी पर ही उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। मगर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यही चीजें ही उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। पहले तो उन लोगों के लिए कि जो पर्दे के पीछे से दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, उनके लिए यही चीज कम कयामत खेज नहीं थी कि कैंसर जैसे एक महंगे इलाज को भी हद से ज्यादा सस्ता करने के ऊपर मंसूबाबंदी की जा रही थी। और हद तो तब हो गई कि जब एक दिन समीरा मूसा की तरफ से एक बड़ा ही ऐतिहासिक दावा किया गया। दावे के मुताबिक वो कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद एक ऐसे नतीजे पर पहुंची थी, या कह सकते हैं कि उनके हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा था कि जिसके जरिए से कॉपर जैसे एक आम और सस्ते धातुओं की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते थे। समीरा मूसा का ये दावा न सिर्फ हैरान कर देने वाला बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कुर्सियों को हिला देने वाला था, क्योंकि इससे तो चंद बड़ी ताकतों का वो भौकाल ही खत्म हो जाता कि जो अगली कई सदियों तक सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूक्लियर पावर के बलबूते पर दुनिया में जमाया गया है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बात भी याद दिलाता चलूं कि हम लोग ये बात आज से 60-70 साल पुरानी कर रहे हैं, ना कि 10-20 साल पुरानी। समीरा मूसा ने एटॉमिक एनर्जी फॉर पीस कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दावत दी गई थी। और इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में इन सारे साइंटिस्ट के बीच इसी चीज को लेकर बातचीत हुई थी कि आखिर पॉजिटिव पर्पसेस के लिए एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके खतरों से कैसे निपटा जा सकता है। यहाँ पर याद रहे कि समीरा मूसा की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद था वो तो फिलहाल कैंसर को लेकर ही था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। और इसकी वजह ये भी थी कि उनकी खुद की माँ उनको बहुत कम उम्र में इसी मर्ज की वजह से छोड़कर चली गई थी। वो अपनी बिजी जिंदगी में कीमती कामों को छोड़कर भी हॉस्पिटल्स के दौरे करती रहती थीं और कैंसर के मरीजों से मिलती थीं और उनको इस मर्ज से छुटकारा दिलवाने के लिए हर मुमकिन मदद किया करती थीं। जाहिर है इतना सब कुछ कर लेने के बाद तो अब समीरा मूसा का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। सन 1950 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के जरिए से उनको अमेरिका में भी इनवाइट किया गया और उनकी काबिलियत और पुरानी जबरदस्त रिसर्च का ही नतीजा था कि उनको अब अमेरिका की तरफ से ये मौका दिया गया कि वो अमेरिका की जो सीक्रेट एटॉमिक फैसिलिटीज हैं, यानी जहां पर ये न्यूक्लियर वगैरह का काम होता है, उनका दौरा करें। समीरा मूसा ने उनका दौरा किया और उसके बाद अमेरिका के सिस्टम में इस चीज को लेकर काफी हंगामा भी मचा, क्योंकि लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतनी खुफिया जगह पर किसी गैर अमेरिकी इंसान का दौरा कैसे कराया जा सकता है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी गैर अमेरिकी को इतनी खुफिया और कीमती जगहों का दौरा कराया गया था। इसके बाद समीरा मूसा को अमेरिका की तरफ से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता भी ऑफर की गई थी, ताकि वो वहीं की नागरिक बन जाएं और हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहें और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करें। मगर समीरा मूसा ने इस बड़े ऑफर को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और कहा कि मेरा मुल्क यानी कि मिस्र मेरा इंतजार कर रहा है। मगर दोस्तों, जब वो अमेरिका का ये दौरा कंप्लीट करने के बाद 5 अगस्त 1952 को मिस्र की तरफ वापस आ रही थीं और उनकी गाड़ी अमेरिका में एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो अचानक से 40 फीट की ऊंचाई से नीचे जाकर गिरी, जिसके बाद फिर उनकी खून से लथपथ लाश ही मिली। डॉक्टर्स ने बाद में रिपोर्ट में बताया कि उनकी मौत फौरन ही हो चुकी थी। और इस तरह से इतिहास की इस बड़ी साइंटिस्ट की जिंदगी का सफर सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में खत्म हो गया था। समीरा मूसा की मौत ने उस दौर में पूरी दुनिया में खूब सनसनी मचाई थी। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आईं जिनको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते थे। माना गया था कि जब उनकी ये गाड़ी 40 फीट की ऊंचाई से गहराई में जाकर गिरी थी तो उनका ड्राइवर पहले ही कूद गया था और ड्राइवर का गायब होना साफ तौर पर ये बता रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि शायद पूरी प्लानिंग के तहत किया गया एक मर्डर था। और हैरानी की बात यह है कि जिस बड़ी साइंटिस्ट की अमेरिका में इतनी आहोभगत की गई थी और जिसको अपनी नागरिकता तक ऑफर की जा रही थी,
उस वैज्ञानिक की मौत को अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा लाइटली लिया गया, कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और एक एक्सीडेंट मानकर ही हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। हमेशा से ही वक्त वक्त पर यह दावा किया जाता रहा है कि समीरा मूसा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत की गई हत्या थी। मिस्र के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर एजेंट इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि समीरा मूसा की कत्ल के पीछे जो साजिश की गई थी उसमें सबसे बड़ा रोल मिस्र की ही एक मशहूर यहूदी अदाकारा यानी कि राकिया इब्राहिम का था। दोस्तों, राकिया इब्राहिम उस दौर में मिस्र की एक बहुत ज्यादा मशहूर यहूदी एक्ट्रेस हुआ करती थी। 1948 में जब इजराइल वजूद में आ गया था तो ये एक्ट्रेस अक्सर मिस्र में रहने वाले यहूदियों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस भी किया करती थी कि उनको अब मिस्र छोड़कर अपने असली वतन यानी कि इजराइल चले जाना चाहिए। इसी एक्ट्रेस को लेकर ही बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इसको हायर किया था ताकि इसके जरिए से उस समीरा मूसा को ठिकाने लगाया जा सके कि जिसकी मदद से उसका पड़ोसी और दुश्मन देश इजिप्ट कभी भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकता था। राकिया को लेकर ये दावा वैसे तो हमेशा से ही किया जाता रहा है, मगर इस बात को और ज्यादा बल उस वक्त मिला कि जब 2012 में रीटा डेविड थॉमस के जो रिश्ते में राकिया की पोती हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए कुछ बड़ी बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया में मौजूद वो पुरानी किताबें कि जो उनकी दादी की हुआ करती थीं, उसके अंदर समीरा मूसा के काहिरा के घर की बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं। इतना ही नहीं, रीटा डेविड थॉमस ने ये भी दावा किया कि राकिया ने उस दौर में समीरा मूसा के घर की जो चाबी थी उसको एक साबुन पर उतार लिया था और फिर इस साबुन को मिस्र के अंदर मौजूद इजराइल के जासूसों के हवाले कर दिया गया था। और फिर एक दिन मंसूबे के तहत राकिया अपनी दोस्त यानी कि समीरा को काहिरा सिटी में एक ओपेरा दिखाने के लिए लेकर गई। तभी पीछे से जो इजराइल के जासूस थे वो सभी समीरा मूसा के घर में एंटर हुए और उनकी रिसर्च या फिर रिसर्च से जुड़ी हुई सारी चीजों की तस्वीरें वगैरह ले ली गई। मतलब साफ था कि राकिया ने समीरा मूसा के साथ जो दोस्ती की थी वो भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के इशारे पर की थी, जो दोस्ती उस वक्त जाकर खत्म हो गई थी कि जब अमेरिका में इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से राकिया के जरिए से ये कोशिश करवाई गई थी कि समीरा किसी तरीके से अमेरिका की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करके उनके साथ काम करना शुरू कर दे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समीरा ने न सिर्फ इस सिटीजनशिप को ठुकराया बल्कि ये भी कहा कि मेरा मुल्क मेरा इंतजार कर रहा है, जो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मामले के कुछ वक्त के बाद ही यानी 1954 में राकिया इब्राहिम मिस्र से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जहां पर उनको बड़े पद से भी नवाजा गया था। वैसे तो इतनी बड़ी और काबिल मुस्लिम वैज्ञानिक की इस तरह से मौत ही दिल को दहला देने वाली थी, मगर उससे भी ज्यादा दिल को दुखा देने वाली चीज ये है कि उस साइंटिस्ट का आज जिक्र भी नहीं किया जाता है। और तो और समीरा मूसा का वो सारा कामकाज, वो सारी रिसर्च कि जिसने उस दौर में दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उन सारी चीज़ों को आज तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहीं कागजों में दबाकर गुम कर दिया गया है क्योंकि वो सारा काम अरबिक में है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।